Good afternoon, friends. In the previous lecture, we had discussed the bank loan procedure and documents required, right? Also, we discussed in detail regarding Udyog Aadhar, right? And we seen how registration should be done on this particular link. And all of us understood like it is a free of cost facility, provided that you should have Aadhar card and PAN card so that you can register for Udyog Aadhar. This is the document looks like, and whatever things you will insert during registration, all details will be available on this particular document. So Udyog Aadhar is having so many benefits related to various subsidies, tax exemption, then various less interest loans, right? Exemption in or concession in electricity bill, then preference in government tenders, like that. So many benefits are there that we discussed, right? So one more thing that we have to discuss today, that is Industrial Development Corporation. Industrial Development Corporation. So if I add Maharashtra Industrial Development Corporation, it will become MIDC, right? And it is a very well-known word to all of us, right? So MIDC Timburni, MIDC Solapur, MIDC Pune, Pimpri, like that. Many names are well known to us. Actually, there we have to discuss today how land allotment has been done till today in this MIDC, and what is this Industrial Development Corporation. And one more thing that we are going to see is a social entrepreneurs case study. One interesting video I have that we are going to see maybe in the last part of the lecture. So let us see Industrial Development Corporation. So the main objective of this particular corporation is the promotion of industries rather than the granting of the finance. If you see in previous support agencies, we seen like most of the government agencies are supporting for finance, right, and training. So here this corporation is basically promoting the industries, and they are not focusing on granting any of the finance. So industrial scheme of its own or collaborate with the private industry. It builds either industrial scheme by himself, or they collaborate with the various industries. Also, they render the assistance for the modernization of industry. So they provide assistance, they provide support to modernization of the industry. If you see, the corporation was set up with the authorized capital of rupees 1 crore, out of which rupees 10 lakh have been issued and paid up by the government, which was increased to 50 lakh by the end of the March 1963. It is a very long age story. So if you see, so they have actually for every corporation money is required. So they have given certain amount of number here in the terms of rupees. So we are not interested in that, but we have to understand that they are also allowed for the financial things, and government is giving that amount to this corporation, because without money any corporation cannot run. And they borrow from government also most of the time the required money. We are interested in listening land allotment. It is very essential, right? Reason is that without land you cannot start the your organization. You need place, you need infrastructure. So infrastructure can be built by yourself, but it is very important thing is that land should be there. Without land it is quite difficult. So friends, it is one important thing that MIDC is providing the land, and it comes under the jurisdiction of the MIDC only. Let us understand the Maharashtra only. Okay, so that's why I am taking example of MIDC, that is Maharashtra Industrial Development Corporation. So how they give the land to you people. So MIDC has set up the procedure throughout the Maharashtra for allotment of the MIDC land on leasehold basis for 95 years, obviously with certain terms and condition. So now we have to understand the meaning of leasehold and freehold.
if you take the meaning of leasehold means मराठीमध्ये काय म्हणतो आपण, भाडेतत्वावर घेतलेली जमीन. So it is nothing but leasehold. And freehold म्हणजे मालकी हक्काची जमीन. Freehold land is nothing but मराठीमध्ये मालकी हक्काची जमीन, आणि leasehold म्हणजे भाडेतत्वावर घेतलेली जमीन. So MIDC is also providing the land on leasehold basis for 95 years, not more than that. And obviously there are also certain terms and conditions, like you should use that particular land, otherwise it will be withdrawn like that. It should not be empty. And they have their specific conditions, and they lease deed, whatever करारनामा म्हणतो ना आपण, lease deed. So त्याप्रमाणे तुम्ही ती जमीन वापरायला पाहिजे, otherwise that may be withdrawn. The allotment of the land in MIDC for industrial use is being through direct online application only. So nowadays, before that, maybe online system, before online system, physical applications were called, scrutiny was happened from their side, and they allot the land to specific people. Depends on the tender and all this. So nowadays it is a direct online application. You will say how everybody will apply, whether all people will get the land. No. Who will get the land? You have to put the amount in that particular application, like this much amount I can pay for per square feet, or for every plot, or 1 hour, like that. You have to mention there. So allotment is totally online system, so you people also can take the participation in that. Okay, so common person also can apply from your place, and most of the time all MIDC areas are giving advertise on their means in various newspapers, maybe English newspaper, then Marathi newspaper, local newspaper. So advertisement is there. You people have to apply on the specific link. Every time that link will different. I think 2 months back there was advertised of Temburni MIDC. There were a few plots available. So that particular MIDC particular officer will give advertise in the newspaper, and they will give the link also. And on that particular link, you people have to apply, and you have to wait for the scrutiny. And after that, they will display the name, like so and so people are eligible. They can pay amount, or per demand draft they can pay, and procedure can be done. So most of the company or firm can purchase the freehold land also. Not necessarily like they should depend on the this MIDC zones only. So what you can do, you can purchase the freehold land. म्हणजे मालकी हक्काची कोणाची land असेल तर you can get that land also. And what you can do, let it be agricultural land, you can convert that same land for the industrial use with the help of collector, and commence your industrial activity. So you are allowed, if there is a industrial activity, you alone also can purchase the agricultural land, but it is mandatory to convert it into industrial use. So in farm area, you cannot start your organization. So through collector, it is mandatory. Like most of the time we heard like NA plot is there, right? Industrial plots are there. So it is mandatory, and that conversion is essential from collector side. Otherwise, you should not commence the activity, industrial activity. Then if one's land requirement is very large, then what to do? Most of the time, if you don't have money, right, purchasing land. So MIDC area is also having big plots available, and they have reserved for the medium, small and micro scale industries only. So it is better to use that land only. So in MIDC area, you can see infrastructure is available, water facilities available, power is available, labor, and many good connectivities, road facilities are there, right? If you see the MIDC area, every area in Maharashtra, Upper Industrial Development Corporation. So all facilities are available. So easily you can get that land, and you can utilize it. If you want to purchase, then convert it into industrial use. So you need money, you need time also, right? So if you are in a hurry, you want to commence your
organization immediately, then you should approach to MIDC area and get the infrastructure readily available there. Getting so land allotment is happening in Maharashtra through online applications only. So it's your role to observe the advertisement, recent advertisement, and or you can visit the MIDC websites also. So I will give that demonstration also of website. MIDC. Okay. MIDC, Maharashtra Industrial Development Corporation. Okay. Website is already there. So on website, they always have news and all these. माझं recommendation सर्वांना हेच राहतं की you always use the land from MIDC area as there are all facilities available. And if you have your own land also, it's easy. So you also can utilize it, but conversion is essential. Otherwise, most of the time it is illegal that doing industrial activity in a agricultural land. Okay, so this is a website of Maharashtra Industrial Development Corporation. So tender lists are there. So on home, if you go guide for investing, if you are interested to invest, then it is also allowed. So you can see for investor land allotment. Okay, so if you click here in land allotment, so land allotment option is also there, direct allotment is there, priority allotment is there, e-bidding is there. आपण बोली वगैरे लावतो असं म्हणतो ना, so it is also there. In the industrial area, areas where more than 80% of the plots are allotted, the remaining vacant plots are allotted by e-bidding. So 80% already done, so 20% are also available. So let us click on direct allotment. Okay, so MIDC online land allotment system. So what you have to do, it is mandatory to register yourself. So they have given certain guidelines also, detailed guidelines on land allotment system of MIDC. So if you click here, so all guidelines are available, like how apply should you should make application, guidelines on the land allotment system of MIDC. So you can see like this, I think this is a 10-page document. You can go through like how what is the procedure exactly. So they ask like which type of organization it is. So you have to choose. Okay, so these document guidelines you can see later on, but let me show the. So login should be done as an investor, right? Not a government. So you can go for register new user. Then you have to put your username, your contact email ID, then mobile number. So let us have registration. My registration I will do. I'll put my username. Then primary contact. Let's put my email ID. Okay, so my email ID is there, mobile number is there. Then security question. Then password, I will put my password. Okay, so they have sent me OTP.
So what happened? Kindly enter the OTP sent on your register mobile. Okay, so a verification email will be sent to your register email ID. Your login ID will be activated once you click the activation button. Now on my email ID, they have sent the get. Okay, so let us see. Okay, MIDC online land allotment system user verification. So what they asked, I have to click here, means my email ID will be verified. Thank you for registering with MIDC, right? So I can log in here. So as so this exercises I am showing to you people. So it is very important that you have to do later on, right? So therefore I am doing this exercise. Obviously not 100%, some part that I don't want to purchase any land. So not necessary to register every detail. It may take much more time. So now what I have to do, I have to write the company owner name. So means I have to purchase means I have to write my name, company owner designation, company owner mobile number means my mobile number, company owner category. So general means category like OBC is there or SC, ST, general. For SC, ST specifically there is a various concessions. If a female entrepreneur is there, then again additional benefits are there. So company address, earlier company address I have to mention here, and then if I proceed, then that application will be submitted, and you people have to wait, right? So this is the simple procedure. Obviously 100% procedure we cannot do, but this is the system, registration and giving the details. So land allotment, one thing I want to tell, land allotment is happening 100% online. So there is no any kind of fraud. Everybody can apply, and you can take this benefit. I always recommend let it be 1000 square foot land, no problem. 2000 square foot land, no problem. At least you take some area from your MIDC area. Reason is only one, that facilities are available. So how many facilities? Water facilities there, then electricity facilities there, labors contractors are available, right? Good connectivity of road and all these. So this is the essential. That's why always I recommend use the only MIDC area land. Getting? So this is the system that I have demonstrated. So I have very interesting case study for social entrepreneur. We have seen male entrepreneur, female entrepreneur, technical entrepreneur, right? So but social entrepreneur is concept something different, right? And most of the time people confuse in a social worker and social entrepreneur. So if you watch this video, it is a basically interview of one of the TV channel. Let us see that video. I think you people are knowing the person who name is, I think I have mentioned name here. Already it is there. Okay. So person Anshu Gupta, right? Basically he has basically from Uttar Pradesh, I think, and he has founded Gunj organization, Gunj. What is his task? Actually, he is collecting the clothes, older clothes from the people from society, and those who are staying in on a street, right? फुटपाथवर जे राहतात त्या लोकांसाठी त्यांनी चालू केलेलं काम आहे. It's a very interesting video interview on Hindi language also, and in this English language also. Mixed language is there. So before that, I want confirmation from your side regarding voice. So let us see this 25 minutes video. Very interesting.
Was it audible to you? Was it audible? Yes. Can you listen voice of this video? I have played for few seconds. At least now. Hello, I'm waiting for your response. Whether video was audible to you? Okay, so thank you all for responding. So carefully listen him. The thoughts of such a eminent personality, Anshu Gupta, social entrepreneur, founder of Gunj, right? So this is also one of the option available for you. So listen carefully. नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा प्रोग्राम मेहमान में, जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी एक खास शख्सियत से। Last 4 years, I have made over 40 crores. Now, you must be wondering, 40? We're indeed happy and proud and privileged to have been joined by the clothing man of India, none other than Anshu Gupta ji. बहुत स्वागत है आपका अंशु जी। बहुत बहुत शुक्रिया निधि, थैंक यू। Thank you for joining us on this lovely program, मेहमान। We are indeed happy to have you here with us. शुरुआत करना चाहूँगी अंशु जी, आपने देने की तहजीब बदल दी भारत में, और अगर गूंज की बात करें तो it resonates with what I have learnt and grown up with, something that nature teaches us. वो चीज़ जो प्रकृति हमें सिखाती है, we receive to give. चाहे सूरज देख लीजिए, चाहे चंद्रमा देख लीजिए, चाहे रिवर्स को देख लीजिए, उस देने की तहजीब के पीछे आपका क्या दायरा है चैरिटी का? आपने उसकी अलग ही परिभाषा करी है। देखिए, मैं तो चैरिटी पे विश्वास ही नहीं रखता। मुझे लगता है कि इंस्टेंट चैरिटी है। आपको कोई, किसी को बहुत भूख लगी, आज आपने उसको खिला दिया, या कोई डिज़ास्टर है आपने सपोर्ट कर दिया, वहाँ तक ठीक है। बट जैसे ही चैरिटी सस्टेन करती है, लगातार होती है, तो वो डिग्निटी ख़त्म करती है। और डिग्निटी के बिना आप डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते, आप विकास की बात नहीं कर सकते। यदि मुझे और आपको अपना आत्मसम्मान प्यारा है, तो जिसके साथ हम काम कर रहे हैं उसका आत्मसम्मान हमारे लिए ज़रूरी क्यों नहीं है? सवाल इस बात का है। दूसरा, बहुत लोग कहते हैं कि गूंज डिग्निटी देता है, आप डिग्निटी देते हो, तो मैं लोगों से कहता हूँ कि हम कौन होते हैं डिग्निटी देने वाले? इस दुनिया में हर एक इंसान डिग्निटी के साथ पैदा हुआ है।
वो चाहे सो कॉल्ड अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, रिच पुअर, किसी भी देश में किसी भी ज़मीन पे जन्मा हो, वो डिग्निटी के साथ पैदा होता है, वो आत्मसम्मान के साथ पैदा होता है। समाज या तो उसको बचाए रख सकता है, उसकी इज्जत कर सकता है, या समाज उसको छीन सकता है। छीनता ज्यादा है। हाँ, छीनता ज़्यादा है, हर हाल में छीनता है। मतलब जब भी आप ये उम्मीद करते हैं कि लोग आपके सामने ऐसे करके खड़े रहेंगे, तो आप बेसिकली, ऐसा नहीं कि वो आपका आदर ही कर रहे हैं हमेशा। मैं आपकी दिल से तारीफ करना चाहती हूँ अंशु जी कि आपने एक मिसाल काम करी सबके सामने, बिकॉज यू ब्रॉट द गिविंग एंड चैरिटी टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बाय योर ऑर्गेनाइजेशन गूंज। तो पहले तो कैसा लगा अपने आप को अखबारों में, टेलीविजन में, हर जगह देखने में? जब हम बात करें रेमन मैगसेसे से अवार्ड की, तो उसमें मेरे ख्याल से मदर टेरेसा को भी नवाजा गया है, आप उस कैटेगरी में आ गए। तो वो फीलिंग पहले सबके साथ शेयर करिए, एंड ऑल्सो टेल अस कि आप गूंज को किस तरह देखते हैं। Through my online store alone, we've sold over $500,000 worth of spices. That's so crazy. देखिए, मदर टेरेसा, विनोबा भावे की कैटेगरी में तो हम जैसे लोग क्या आएंगे, शेषान जी, हाँ, हम लोग क्या आएंगे। बट हाँ, ये है कि भाई वो डूअर किस्म के लोग थे, वो अलग तरीके से चीज़ों को सोचा करते थे। और जाहिर बात है कि जिस चीज़ को आप हिस्ट्री में पढ़ते हो या किताबों में पढ़ते हो, और उसके कहीं पे 50वें, 60वें, 70वें नंबर पर आपका भी नाम लिखा हो, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। और कहीं ना कहीं आपको अपनी आइडियोलॉजी पर, अपनी सोच पर, और इतने सारे लोग जो दिन रात साथ में लगे हुए हैं इस आंदोलन में, इस मूवमेंट में, उनकी सोच और उनके लिए बहुत खुशी महसूस होती है। जब आप हमारी तरह एक जर्नलिस्ट थे और इधर उधर स्टोरीज ढूंढा करते थे, तो देयर वर 2 स्टोरीज दैट टच्ड योर लाइफ, और उसके बाद एक खाका तो बन ही गया था आपके दिमाग में कि मुझे गूंज जैसी संस्था शुरू करनी है, और मुझे किसी के लिए नौकरी नहीं करनी, कॉर्पोरेट हो चाहे कुछ और हो। तो वहाँ हमें ले चलिए और वहाँ से शुरुआत करिए। जो आपने 2 स्टोरीज़ की बात की, वो 2 अहम हैं। एक तो उत्तरकाशी का अर्थक्वेक हुआ था उसी समय में जब मैं पढ़ रहा था, और मैं अपना छोटा सा वो मिनोल्टा कैमरा लेके वहाँ चला गया था 10-15 दिन के लिए। ज़िंदगी में पहली बार डिज़ास्टर देखे, पहली बार गांव देखे, उससे पहले कभी गांव इस तरह से देखे नहीं थे। पहली बार लोगों का ऊंचा माथा देखा, मतलब कि किस तरीके से डिज़ास्टर के टाइम में भी वो उनका माथा बरकरार रहता है, बट किस तरीके से रिलीफ मटेरियल उस डिग्निटी पे चोट करता है, किस तरीके से गाड़ी जाती है और फेंक के कपड़ा दे देती है उस इंसान को जिसका अपना बढ़िया मजबूत घर था और टूट गया, और जो आपके पास उसके बाद भी नहीं आया। आज गुर्बत में है तो ठीक है, उसको सड़क पे आना पड़ रहा है। और इसीलिए मुझे जब हम विक्टिम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जब हम बेनिफिशियरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे बहुत नाराज़गी और गुस्सा होता है कि आप सोचते क्या हो। उसका अच्छा भला बड़ा मकान था, अपनी ज़मीन थी, 3 बच्चे खो दिए, एक लैंडस्लाइड आई और खत्म हो गया। जो आज की डेट में 91 की तो बात चलिए अलग है, आज की डेट में तो आपके बड़े बड़े शहरों के मकान कब उनमें पानी आ जाता है 4 फीट आपको नहीं मालूम, और आप कपड़ा फेंक के जाते हो उसके कपड़ा फेंक सामने के से जाते हैं। डिजास्टर के नाम पे, बिल्कुल, है ना। तो शायद वो मेरी पहली लर्निंग थी। मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी का ये मकसद बन जाएगा, बट वो शायद वो जो आप घूर के देख रहे थे चीज़ों को, मैं अक्सर कहता हूँ 2 तरीके होते हैं देखने के, एक देखना है, घूर के देखना। तो मेरी आदत घूर के देखने की है शायद। तो वहाँ वो जो ऑब्जर्व किया था वो बाद में बहुत काम आया। दूसरा, उसी समय में मैं एक बार पुरानी दिल्ली में घूम रहा था और एक रिक्शा दिखा, और मैंने उसका पीछा इसलिए किया क्योंकि मेरे पास जूम लेंस नहीं था और मैं वो खूबसूरत फ़ोटो दूर से नहीं ले पा रहा था। तो मैं पास में गया, उस रिक्शा पे लिखा था दिल्ली पुलिस का लावारिस लाश उठाने वाला। तो सडनली एक पिक्चर, एक स्टोरी जैसी लगी आपको। मैंने उनका फर्दर पीछा किया, वो दिल्ली गेट पे रुके, उन्होंने एक लावारिस लाश उठाई। फिर मैंने उनके पास हफ्ता सुबह से रात तक उनके साथ ही रहता था, 6 साढ़े 6 बजे ठंड में पहुंच जाता था, क्योंकि सुबह उनके पास ज़्यादा खबरें आती थी लाशों की। और हबीब भाई थे, अब तो नहीं रहे, उनका फुल टाइम काम ही लावारिस लाशें उठाना। जब उन्होंने ये कहा कि वो 10 से 12 लाश उठाते हैं हर 24 घंटे के अंदर, और गर्मियों में 4 से 5 होता है, तो मैंने भी कुछ साल तक यही सोचा कि लोग ठंड से मर रहे हैं। मैं ये नहीं समझ पाया कि उस ठंड में यदि मैं ज़िंदा रहता हूँ और कोई सड़क पे मर जाता है,
तो ये एक्चुअली ठंड नहीं है, ये कपड़े की कमी है। कपड़े की कमी है, बिल्कुल। और कितनी मौतें होती हैं इस तरह के वेदर में। मेरे ख्याल सबसे खराब डिजीज ये कोविड-19 नहीं है, वो गरीबी है, जो गरीबी यहाँ एक नहीं, disaster है। हर मुल्क में है अगर देखा जाए तो। और एक और बहुत टचिंग स्टोरी जो दिल को छू जाती है, वो बानो की स्टोरी है, जो किसी लाश को पकड़ के सोती थी। उसके बारे में बताएं, वो कैसे तो आपको? वो हबीब भाई की बिटिया थी जी। और अब नहीं रही वो भी, अनफॉर्चुनेटली वो भी बड़ी होके उसकी डेथ हो गई। और उस समय 5-6 साल की पार्क में फुटपाथ पे खेलती हुई बच्ची थी, और क्योंकि मेरे साथ दोस्ती हो गई थी, मैं तो इतना समय रहता था, चाय खाना सब उनके साथ ही करता था, तो उसने ये कहा था कि जब मुझे ठंड लगती है तो मैं लाश के साथ चिपक कर सो जाती हूँ। और वो आगे कहती है कि लाश तंग नहीं करती, लाश करवट नहीं बदलती। ये उसका बड़ा डॉक्यूमेंटेड स्टोरी है, मैंने साप्ताहिक हिंदुस्तान के में लिखा था उस समय में, 2 पेज की स्टोरी थी। तो अब जो भी इंसान एक अर्बन एजुकेशन सिस्टम से आया हो, जैसे मैं आया था, तो मैं डिनाइल के मोड में था। मैं ये कहता रहा कि डेड बॉडीज़ तो कोल्ड होती हैं, बिकॉज मैं कंपल्शन नहीं समझ रहा था, मैं अपने फालतू लेंसेज लगा रहा था, जबकि मैं सब देख रहा था, बट मैं फिर भी डिनाइल के मोड में था। तो इन लोगों को खासकर कंबल की, हर चीज की बहुत जरूरत होती है। मगर एक और मार्केटिंग पीआर एंगल अगर मैं आपको याद दिलाऊं, जो दिल्ली की सड़कों पे देखना जरूर हम सभी को पड़ता है कभी ना कभी, जो देहरादून में शायद नहीं मिलता होगा, जो आपने यहाँ आके देखा होगा कि बिना स्वेटर के भीख मांग रहे हैं, ठंड में ठिठुर के भीख मांग रहे हैं। उन सब के पीछे क्या मानसिकता है? तो यदि हम लोग खूब अच्छी टाई लगा के फालतू लैंग्वेज में मार्केटिंग करें तो जायज़ है। हाँ? वो डबल स्टैंडर्ड फिर क्यों है, जब उस इंसान का धंधा यही है कि उसके पास घर नहीं है, उसको सड़क पे कमाना है। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि वो एक्ट सही है, बट मैं कहता हूँ कि हमारे डबल लेंसेस कैसे हो जाते हैं। कितना लोग यहाँ पे बोलते हैं दिल्ली में, माना आपके 20,000 लोग माना होमलेस हैं या 50,000 है, जो भी नंबर है, क्योंकि अक्सर नंबर इस बात पे निर्भर करता है कि कौन सर्वे कर रहा है, सीधी सी बात है, राइट? ये बहुत एक कड़वा सच है। तो लोग हमें कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं देना चाहिए क्योंकि वो तो सब ड्रग लेते हैं। तो मैं लोगों से पूछता हूँ कि भाई 20,000 50,000 लोग ड्रग वाले ही हैं क्या? इतने सारे लोग ड्रग लेते हैं यहाँ पर। पिछले साल जब लाखों लोग सड़क पे चले, उन्होंने कुछ नहीं लूटा, उन्होंने हमें बिल्कुल परेशान नहीं करा। तो हमारी जो सोच है सड़क पे रहने वाले इंसान के लिए, वो बदलना बहुत जरूरी है। हमें लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो भी एक खूबसूरत इंसान है जो हमारे घर बनाता है, जिनकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। वो बहुत खूबसूरत इंसान है। हमारी सोच में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है कि हमको लगता है कि सामने वाला जो अच्छे कपड़े नहीं पहना हुआ वो कुछ ना कुछ गलत करेगा। ऐसा नहीं है। मतलब हमने तो पिछले 22 साल की जर्नी में ये देखा है बहुत अच्छी तरीके। आपने जब ये शुरू की अपनी संस्था गूंज, तो आपने सेग्रीगेट करना शुरू किया हर तरह के वस्त्र को। मैंने पढ़ा है कि आपने ये देखा कि गांव में, एक तो गांव में भिखारी नहीं होते, तो गांव का आपने पूरा लैंडस्केप बदला है, जो बहुत महान काम आपने किया उन्हें जॉब देके। तो वो आइडिया कब आया और उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। हमारा ये रियलाइजेशन था जो हम बार बार कहते थे कि यू डोंट फाइंड बेगर्स इन द विलेजेस, बेगिंग इज अ सिटी फिनोमेना। गांव में भिखारी नहीं मिलते। भीख शहर का विषय है जो कंपल्शन में होता है, बाय चॉइस नहीं होता। कोई जन्म से भिखारी पैदा नहीं होता। बिल्कुल, ठीक है। और यदि वो कोई 0.05% कोई मिल जाए तो वो स्टोरी नहीं बनना चाहिए। वो बहुत छोटी सी चीज है, उसको कहानी मत बनाइए। नेग्लिजिबल। बचे हुए की बात कीजिए। जो कंपल्शन में भिखारी बनता है वो बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए जानना। दूसरी बात यह है कि जो मैंने कहा कि वो डिग्निटी का सवाल है, वो बहुत डिग्निफाइड लोग हैं। और तभी ये जो पूरी यात्रा शुरू हुई हमारे सामान की, उसमें सेग्रीगेशन एक बहुत बड़ा इशू हुआ। क्योंकि हमने कहा कि देखिए, सबसे पहला तो हमें ये करना चाहिए कि जब भी हम पुराना सामान कोई देते हैं, और गूंज सिर्फ कपड़े पे बात नहीं करता, हम कोई मतलब क्लॉथ, यूटेंसिल, फुटवेयर, पुराने डोर, विंडोज़, मतलब एक यूज शिटपॉट के अलावा गूंज सब कुछ एक्सेप्ट करता है और उसमें प्रोसेस डालता है। तो सबसे पहली बात तुमने कहा कि जब भी हम पुराना सामान दे रहे हैं, डोनेशन शब्द हटा दीजिए। बिकॉज द फैक्ट रिमेन्स दैट वी डोंट डोनेट, वी डिस्कार्ड। हम डिस्कार्ड करें। बिल्कुल। हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमको नहीं चाहिए, बल्कि जो इंसान हमारा उतरा हुआ या यूज किया हुआ सामान इस्तेमाल करता है,
उसको हमें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे इमोशंस का कीपर है। हमने जिस चीज पर अपना खून पसीना लगाया है उसको वो दूसरी जिंदगी दे रहा है, वरना कहीं लैंड फिल्म में पड़ा होता। हमने ये डेफिनेशन बदलने की कोशिश की। दूसरा, हमने कहा कि डोनेशन का जो माइंडसेट है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वी गिव व्हाट वी हैव, वी डोंट गिव व्हाट पीपल नीड। हम वो दे रहे हैं जो हमारे पास है, और अच्छी नीयत से दे रहे हैं, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब आप शहर के, आप माना कपड़ों की बात कर लीजिए, इंडियन वुमेन इन द सिटीज़ जो हमें मिलता है वो मिलते हैं लेडीज सूट, जीन्स, टी शर्ट, टॉप, कुछ ऐसे मैक्सिमम सामान। हिंदुस्तान के गांव में आज भी साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट या ट्रेडिशनल ड्रेस की ज़रूरत है। मेरे जैसे मेल 32 से 40, गांव का मेल 26 से 30, साइज, कल्चर, शेप, ज्योग्राफी, बहुत कुछ है। तो जब आप उसको मैच करते हैं, जो हम बहुत बारीकी से साइंटिफिक तरीके से करते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल हो जाता है और वो इज्जत के साथ मिलता है, वो फिर उसको इंसान लेना चाहता है। और दूसरा, जो आप डिग्निटी की बात करते हैं या जो गिविंग के कल्चर चेंज करने की बात करते हैं, हमने रिसीविंग के कल्चर को भी बहुत बदलने की कोशिश की। हमने कहा कि चैरिटी कोई पसंद नहीं कर रहा, ये हमारे परसेप्शंस हैं, हमारे थॉट हैं। तो आज यदि आप देखें तो हम पूरे देश में कोई 27 स्टेट्स के डिफरेंट हिस्सों में आज के डेट में कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। वो सड़कें बनाती हैं, वो तालाब खोदती हैं, कुएं खोदती हैं, बैम्बू के ब्रिजेस बनाती हैं, तालाब का पानी साफ करती हैं। बहुत सारे तालाब साफ करते हैं। मैं लास्ट ईयर हम लोगों ने करीब 300 किलोमीटर गांव की सड़कों पे काम किया है, जबकि वो पेंडेमिक का ईयर था, उसमें बहुत सारे मतलब बहुत बार काबिले लॉकडाउन भी तारीफ था। है, बिल्कुल। और उसके बाद जब वो काम करने के बाद, वो सारे काम करने के बाद, और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि डिसीजन मेकिंग आखिरी इंसान की है। मैं जाके नहीं बोल रहा कि हर गांव में सड़क बनेगी, वो लोग फैसला करते हैं कि उनकी प्रायोरिटी क्या है, उस पर काम करते हैं। उसके बाद बहुत इज्जत के साथ में ये सामान उनको मिलता है, वो सामान लेते हैं। तो एक तो आपकी जो बार्टर इकोनॉमी है वो जिंदा हो गई, एक आपकी डिग्निटी बच गई, यू नो, और गांव के विकास का काम हो गया, नई करेंसी आ गई। ये है पुराने सामान की वैल्यू, यदि आप उसे वैल्यू दें। मुझे याद आता है कि हमने बचपन में देखा है कि एक बर्तन बेचने वाली जो महिलाएं आती थी, वो बर्तन देती थी और कपड़ा लेती थी। तो कुछ उस तरह का बार्टर है या आपका कुछ फर्क है? देखिए, हमारा फर्क इसलिए है क्योंकि हमारे बार्टर में नई करेंसी है। एक तरफ शहर का अनयूज्ड, अंडर यूटिलाइज मटेरियल है, दूसरी तरफ यू कैन से गांव का या कम्युनिटी का श्रम है, विजडम है। वो दो नई करेंसी के बीच में बार्टर है कि आप इधर आप श्रम दे रहे हैं और उधर आप सामान आपको मिल रहा है, और पैसा उसकी लॉजिस्टिक्स के लिए। दूसरा बात, मैं ये मान के चलता हूँ कि जो इंडिया की स्ट्रेंथ रही, इवन ये जो बर्तन वाली महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इसका जिंदा होना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोगों को, जब हम मिडिल क्लास हो जाते हैं या थोड़े ऊपर हो जाते हैं, तो कोई महिला आके बैठती है तो हमें अच्छा नहीं लगता, है ना। मैं कहता हूँ कि ये हमको और बढ़ावा देना चाहिए इन चीज़ों को, क्योंकि सबसे बड़ा जो अपराध है, मैं ये मानता हूँ, वो किसी सामान को बिना वजह बक्से या अलमारी में रख देना है। हमारे पास भरा रहता है घरों उसको में। सर्कुलेशन में डालिए। आप जिसको अच्छा लग रहा है दीजिए, इज्जत के साथ दीजिए। फेसबुक पे फोटो डालने के लिए मत दीजिए, क्योंकि उसकी इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपके ऊपर एहसान कर रहा है क्योंकि वो आपके सामान को यूज कर रहा है। So in the COVID pandemic time, people wanted medicine, people wanted clothes, people wanted outreach programs. How do you look at policy and social entrepreneurship in India? Social entrepreneurship is all about, it doesn't create needs, it actually fulfills need. जैसे बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में आप नीड क्रिएट भी करते हैं, आप जिंग थिंग बताते हैं, हम वो नहीं करते। हम समाज को देखते हैं कि वहाँ पे क्या नीड है, पहले हम उसको पूरा कर लें, उसके बाद हम कुछ बड़ी बड़ी बातें करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में आप डोनर और बेनिफिशरी जैसे फालतू शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, और कुछ लोग करते भी होंगे तो मैं बहुत इस चीज़ को बार बार उठाता हूँ। आप स्टेक होल्डर मान के चलते हैं, आप ये मान के चलते हैं कि हर एक इंसान की भागीदारी है, हर एक इंसान उसमें कुछ ना कुछ डाल सकता है। कोविड का जो पूरा फेज़ आया है, इसमें दो तीन चीज़ें हुई हैं। एक तो देखिए ये हुआ है कि बहुत सारे लोग स्ट्रगल करके कहीं पहुंचते हैं। जब एक जनरेशन स्ट्रगल करती है तो दूसरी जनरेशन कहीं पहुंचती है। अब उन लोगों को दोबारा से स्ट्रगल करनी होगी, एंड दैट इज़ वेयर आई थिंक हमारे जैसे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ी है कि हम उनके साथ में खड़े हों। स्ट्रगल करना वो जानते हैं, हमें सिखाना नहीं है, स्किल उनके पास है।
इस देश का किसान कई हजार किस्म के चावल खोज चुका है। ये हमारी गलती है कि हम उसे अनस्किल्ड बोलते हैं। इस देश का इंसान दो आम की कलम जोड़ के तीसरा आम निकाल लेता है और लैब में नहीं जाता, वहीं जमीन में कुछ कुछ कर देता है। तो बहुत स्किल्ड है, हमें बस उसके साथ खड़े होना है। हमें नए एम्प्लॉयमेंट के तरीके नहीं खोजने। ये कोविड का जो टाइम है पूरे विश्व में, इसने इस बात को सिखाया है, यदि हम सीखें, कि एक बहुत बड़ा जो माइग्रेशन होता है वो फोर्स्ड माइग्रेशन होता है। वो माइग्रेशन बाय चॉइस नहीं होता। जैसे मैं देहरादून से जब माइग्रेट किया था तो मेरा माइग्रेशन बाय चॉइस था, मैं वहां भी कर सकता था कुछ। Last 4 years, I have made over 40 crores. Now, बाकी जो लोग हैं बहुत फोर्स्ड माइग्रेशन से आते हैं, और इसीलिए जब इस तरह का कोई भी डिज़ास्टर होता है तो वो वापस जाते हैं अपने रूट्स में। मुझे लगता है ये हमारे देश में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमारे जैसे लोगों के लिए, सरकारों के लिए, पॉलिसीज़ के लिए, कि जब वो इंसान वापस वहाँ चला गया है, हम उसके साथ वहीं पर काम करें, उसे वहीं एस्टैब्लिश करें, वहीं करें। I think the Prime Minister is also speaking on the same lines now, aspirational districts, other districts where at the rural front you need to skill people. Don't look for jobs in cities and metros and crowd them up. But यहाँ आपने जो काम किया, tribal areas में भी जाहिर है आप गए होंगे. So what is that feeling you got from those areas? I think what is lacking is just a little bit of resource. Otherwise, ये बड़े मेहनती हाथ हैं, बड़ा खूबसूरत दिमाग है, बहुत अच्छे रिसोर्स मैनेजर हैं। मतलब आप सोचिए, हम लोगों से मोटी मोटी सैलरी में हम लोग 50 कर्जे लेके बैठे हुए हैं, और हमसे अभी किसी की इसकी इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो रही, उसकी इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो रही। वो उतने से छोटे से रिसोर्सेज में अपनी लाइफ भी मैनेज करते हैं, शादियाँ भी करते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करते हैं, गांव भी साफ रखते हैं, you know? और यदि आप देखें लास्ट ईयर भी तो बहुत सारी सिटी फेल हुई कोविड मैनेजमेंट में, बट गांव क्वारंटाइन और ये सब अपने बहुत कम रिसोर्सेज में कर पाए, खाना बन के जा पाया लोग। बिल्कुल, ये सोच बदलने की ज़रूरत है। और आपका जो इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड रहा वो कहाँ से रहा, एंड उसमें आप किस तरह माहिर और सक्सेसफुल हुए गूंज चलाने के लिए, क्योंकि जाहिर है यू नीड द मनी। अब इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड तो ठीक है, मतलब आज की डेट में आप अल्टीमेटली तो डिमांड एंड सप्लाई का गेम खेल रहे हैं, और मैंने तो साथ साथ में पीजी कर लिया था इकोनॉमिक्स में, जो हर हाल में काम आता है। आपकी कोई भी एजुकेशन किसी भी लाइन में हो या कोई भी तजुर्बा हो, वो काम आता ही है ज़िंदगी में। तो वो, और ख़ासतौर पे जब आप एक बहुत लार्ज स्केल पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के काम में हैं, आज की डेट में आप बहुत लार्ज स्केल पे लॉजिस्टिक्स के काम में हैं, तो शायद आपकी पूरी एजुकेशन का कहीं ना कहीं बहुत अच्छा योगदान मिला ही होगा इस चीज़ में। जहाँ तक गोंज के इकोनॉमिक्स का सवाल है, हमने इसको बहुत ही पीपल ओरिएंटेड रखा, बहुत ही मूवमेंट की तरह से किया। हमने कहा कि हम किसी एक एजेंसी पर या इंस्टीट्यूशन पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, हम आम जनता से ही पैसा इकट्ठा करेंगे। कि जब आप सामान देते हैं तो आपको ये भी समझना चाहिए कि आप मुझे यदि एक टी शर्ट भी दे देते हैं, बाकी तो बड़ी बड़ी चीज़ें छोड़िए, तो वो टी शर्ट एक पेड इंसान एक पेड जगह पर बैठ के सॉर्ट करेगा और पेड ट्रांसपोर्ट से जाएगा। तो खाली सामान दे के हाथ मत वो करिए। आपको समझना पड़ेगा कि यदि हम 10 किलो आटे का कोई बैग बाज़ार से ख़रीदते हैं तो रिक्शा में पैसा लगाते हैं, उसको ऊपर रखने के लिए पैसा लगाते हैं, डिलीवरी के चार्जेस देते हैं ना, तो ये भी वैसा ही एक काम है कहीं ना कहीं। जो आपका 27 स्टेट्स में काम चल रहा है, आर यू एम्प्लॉइंग पीपल इन ऑल द स्टेट्स और इज इट ओनली इन दिल्ली दैट यू एम्प्लॉय? नहीं, एंड यू, हम लोग आज की डेट में कोई वी आर 1000+ पीपल, यस, जो फुल टाइम, पार्ट टाइम, कम्युनिटी वर्कर्स, पीस रेट पीपल, सब मिला मिलू के कोई 1000 से ऊपर लोग हैं और पूरे देश में फैले हुए हैं और सभी पेड हैं। उसके अलावा हज़ारों की तादाद में शहर और गांव दोनों में वॉलंटियर हैं। बट ये बहुत एक एक बहुत प्रोफेशनल काम होता है। ये हम लोगों की बहुत सारे लोगों की जो शायद सोशल सेक्टर को समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, वो बड़ी गलत फहमियाँ लेके बैठे हुए नो हैं। पीपल वेट फॉर डिजास्टर्स टू हैपन इन दिस कंट्री। मैंने कई स्कूल्स में और कॉलेजेस में देखा है दैट दे स्टार्ट कलेक्टिंग ग्रोसरीज एंड बेड शीट्स एंड ऑल ऑफ दैट ओनली व्हेन अ डिजास्टर हैपन्स, like we've had recently Uttarakhand tragedy, but now that's not happening because schools are also not open. So how do you manage to convince them to come forward? Have you worked with schools for Gen X to realize the importance of this? Absolutely. So one thing which the society really need to understand, which I've been saying again and again, that poverty is one of the biggest and the ongoing disaster.
गरीबी एक डिज़ास्टर है। आप किसी इवेंट की वेट मत कीजिए कि कोई अर्थक्वेक होगा, फ्लड होगा तो हम काम करेंगे। वी नीड टू वर्क कॉन्स्टेंटली, राइट? तभी ये चीज़ें, तभी समाज बदलता है। समाज इवेंट पे काम करके नहीं बदलता, किसी एक पर्टिकुलर हादसे पे काम करके नहीं बदलता। आपका कंटिन्यूस एफर्ट चाहिए उसमें, पहली बात। दूसरी बात, हमारा जो मटेरियल कलेक्शन का जो चीज़ होती है वो स्कूल्स तक सीमित नहीं है। स्कूल उसका एक स्मॉल कंपोनेंट है, और वो भी लार्जली वो कंपोनेंट इसलिए भी है कि हम रियलिटी से रूबरू कराना चाहते हैं उनको। हम उनको ये समझाना चाहते हैं कि जिन बच्चों को आप देखते हो और आपको लगता है कि बड़ा बेचारा बच्चा है, इसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता, है? वो बहुत टैलेंटेड बच्चा है। वो बहुत कम रिसोर्सेज में कमाल कर सकता है। और इस देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डूअर्स उन्हीं गाँवों से निकल के आए हैं, उन्हीं आंगनवाड़ियों से निकल के आए हैं, जिनके पास म्यूज़िक टीचर को मोटी सैलरी देना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट म्यूज़िक टीचर था उनका कोई आसपास में ही, किसी से भी सीख लिया करते थे। वो रेडियो से सीख लेते थे, टीवी से सीख लेते थे, और आज भी सीख रहे हैं। वो एक इक्वालिटी और ये समझाना इस देश की बड़ी आबादी को, जो डिसीजन मेकर बनता है, जो ओपिनियन लीडर बनता है, क्योंकि डिसीजन मेकर और ओपिनियन लीडर गांव के स्कूल का बच्चा उस स्तर पे बहुत नहीं पहुंच पा रहा। वो इन सो कॉल्ड प्राइवेट स्कूल, जिनको अनफॉर्चुनेटली इंडिया पब्लिक स्कूल बोलती है, वो उनका बच्चा बनता है। तो उनको देश को समझना बहुत ज़रूरी है। उनको उसके उनको बेचारगी से देखने की ज़रूरत नहीं है किसी भी हाल में। वो बहुत इस देश के सम्मानित लोग हैं, जिनमें हमसे ज़्यादा रिसोर्स मैनेजमेंट है, हमसे ज़्यादा उनकी ताकत है काम करने की, और हमसे ज़्यादा मेहनत और जुनून भी कहीं ज़्यादा है, जुनून हौसले की उड़ान भी ज़्यादा है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, दैट इज व्हाट। तो इसलिए हम लोग स्कूल्स को बहुत इन्वॉल्व करते दिक्कतें हैं। इतनी होती हैं तो स्ट्रगल से इंसान निकलता है। इतने फ्लड्स के बाद भी हर साल लोग वापस आते हैं और वापस स्कूल में जाते हैं, वापस खेतों पे काम करते हैं, वापस घर बनाते हैं। हमें सीखना चाहिए उन लोगों से। तो बस यही करते हैं हम लोग स्कूल्स के साथ में काफ़ी। व्हाट इज योर विजन? चलते चलते अपना विजन बताइए। आर यू प्लानिंग टू गो इंटरनेशनल आल्सो इन अ बिग वे, और हैव यू ऑलरेडी स्टार्टेड दोज relief measures for international countries and cities? If you talk of Germany, it's in floods as we speak. So there are these kind of disasters happening in South Africa and so many places where these kind of reach out progressive programs are important for the globe. If we talk of Earth as one planet. Absolutely. So one thing which is very clear कि हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत सारा समय इंडिया में ही बिताना है, और बिकॉज वी नो कि हम कुछ अच्छा और बड़ा यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमारा आइडिया बहुत सिंपल था बहुत शुरू से। इवन इन मैक्सिस स्पीच मैंने ये बात बोली है दैट वी आर गिविंग यू कॉपीराइट टू कॉपी अवर आइडियाज़। हम आइडिया की तरह ग्रो करना चाहते हैं, हम सिर्फ इंस्टीट्यूशन की तरह ग्रो नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि आइडिया कॉपी हो, आइडिया रेप्लिकेट हो, क्योंकि ये दुनिया की किसी भी इकोनॉमी में फिट हो सकता है। जो भी आइडिया, जहाँ पर आप पुराने सामान को इज्जत देना शुरू कर दें, लोगों के श्रम को इज्जत देना शुरू कर दें, उनको करेंसी मानना शुरू कर दें, एक पैरेलल इकोनॉमी की एक तरह से शुरुआत है ये। तो ये दुनिया के हर कोने में एप्लीकेबल है। डिज़ास्टर रिस्पॉन्स में डिग्निटी को जोड़ना, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स में रिकन्स्ट्रक्शन के काम को डिग्निफाई करना और अपने हाथों से करना, ये दुनिया के हर कोने में हो सकता है। तो वो लर्निंग्स बाहर जा रही हैं। हम थोड़ा सा 1.5-2 साल अभी डिलेड हैं कोविड की वजह से, वरना कुछ कंट्रीज़ में ये मॉडल होना शुरू हो रहा था कि जहाँ पर लर्निंग्स जाएँ और लोग इस पर काम करना शुरू करें। क्योंकि लॉजिस्टिक्स है तो हम ये नहीं चाहेंगे कि अक्रॉस द बॉर्डर लॉजिस्टिक्स काम करें। हर एक देश के पास रिसोर्सेज होते हैं, बशर्ते कि वो उनको वैल्यू करना शुरू करें। तो चलते चलते मैं यही कहना चाहूँगी, मोर पावर टू योर एंडेवर्स, मोर सक्सेस टू यू एंड मोर आइडियाज टू यू। थैंक यू सो मच। Okay, friends. I think you got the clear idea regarding social entrepreneurship and business entrepreneurship. So these are the thoughts of social entrepreneur. So whatever he told within 25 minutes. So this kind of thought, if you have, then definitely you can become a social entrepreneur. So Anshu Gupta is a very well-known entrepreneur, founded Gunj. So one question from my side, like he told the difference between social entrepreneur and business entrepreneur.
So anybody remember, because this is the key takeaway you can say from this particular video. Anybody remember? You have to put in chat box, right? So those who are actually having interest in social entrepreneurship, so this is also a very good thing that you can serve the society. Obviously, through that you will get money, but earning the money is not intention. So he told in his speech like 1,000 people are there in his organization, that is Gunj, and beyond that also part-time people and volunteers are there. So concept, I think everybody understood. He is providing clothes to street people. Yes, can somebody put in chat box like this is the basic difference he told, social entrepreneur and business entrepreneur. Very interesting thing he told. Are we agreed at least he is a social entrepreneur? And obviously technical things are not required here, right? So designing, obviously few things are required like management, and if you are having from your within mind, within the things are coming like I want to serve the society, right? So you can become a social entrepreneur. And I think here you got the thing like social worker as well as social entrepreneur. I think the difference also cleared. But let me heard from your side, what is the basic difference he told in his speech regarding social entrepreneurship and business entrepreneurship? And if you understood this, if you could explain this, then definitely you understood the concept of social entrepreneur. So this is a third tutorial that you have to write. Not necessary, there are so many social entrepreneur in the world, in the India, in the Maharashtra. You can write their case studies as a part of tutorial, but I think you understood the concept in detail. If you don't remember, I want to remind you what is the basic difference he told. Social entrepreneur, he told like there is already need in the society and you have to fulfill. But in business entrepreneurship, already means you can create the need and people will start utilizing your product. Means you have to create the need and you have to start a business. So this kind of thing he told like it is a business entrepreneurship. But to become a social entrepreneur, already needs are there. Just you have to fulfill, you will become a social entrepreneur. Okay, so this thing he told that difference. I hope with this we'll conclude our today's lecture. Thank you very much. If there is any doubt related to today's discussion regarding the land allotment and very new innovative concept, that is social entrepreneurship. With this, we'll stop here. Put your roll number in chat box and leave the meeting.